dear students. How are you? Yes, very nice. Today I'm going to start a very important topic of English grammar, and that is related to time. Can you tell me which topic we are going to start now? Oh, very nice. Clap for yourself. Yes, of course. I'm going to start today tenses. Tenses, we know very well what are tenses. Tenses that tells us about time through verb form, right? Through verb forms. And you know very well the types of verb forms. First form of the verb, second form of the verb, third form of the verb, and then we take V1 plus V1 plus ing, right? So with this verb form sometimes we use s or es also, but in exception cases or for this we have some rules also, right? So you should know about all the verb forms, at least very common verb forms that are used in our day-to-day life, right? So shall we start now our tenses? Before going to start our tenses, let's recap, let's revise sentences. On the very first day, I have taught you the grammar topic, that was sentence. Now you have to tell me for a sentence, what do we need? Yes, to make a sentence, what do we need? Yes, very nice. We need subject and verb and then object. I have already told you what is subject. Yes, subject is the doer, right? Then verb. Verb is basically an action. And object that tells us about an action, when the work has done, why the work has done, where the work has done, what the work has done, or how the work has done, right? The word that tells a word or phrase that gives answers of these questions, any of these questions, that is known as object. तो जो काम को करता है, एक्शन को जो कर रहा है, that is known as subject, and verb, it's our action, and object that tells us, that gives answers of these questions. Let's have an example. She writes letter. Okay, so here, which is the work? Writing. So this is our verb, this is our action, and who is doing the work? She. So it is our subject. And letter, what the person is writing? It is giving us this answer. Then it is our object. Right? Got it? So for a sentence we need these three. If I want to add something, then I'll add here helping verb. For a simple sentence, we have formation, subject, then we take helping verb and then object. This is the formation for simple sentence. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टेंसेस स्टार्ट किया था और मैं सेंटेंसेस टीच करने लगी हूं, है ना? व्हाई? क्योंकि हमारे जो टेंसेस है बेस्ड हैं वर्ब के वर्ब पे. दिस वर्ब फॉर्म टेल्स अस अबाउट द टाइम. ये वर्ब फॉर्म ही है जो सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स इसकी यूज करते हैं, दैट टेल्स अस अबाउट टाइम, अबाउट टेंसेस. इट चेंज द टेंस.
Okay, with the help of helping verb or without it. This was all about the simple sentence. Now let's talk about interrogative and negative sentences. Okay, so for simple sentence we have formation subject, then helping verb, and then verb, and then object in a sentence. Okay, if we want to make interrogative sentences, then we have a particular formation. That is, first we have to take helping verb. Helping verb will come first, and then subject, and then verb, at last object. Okay, and then question mark. If we are going to start a sentence with helping verb, then it gives us answer of yes or no only. Okay, if we want answers in detail, then we will use formation for interrogative, WH words, any word. Okay, then helping verb, and then again same subject verb object. Subject, verb, object. This is for interrogative, right? If we want answer in detail. Okay, this was for interrogative. Now if we want a sentence in negative form, then we will use subject, then helping verb, plus not, plus verb, and then object. Clear? This is for negative sentences. So we have discussed about 3 types of sentences. First, simple sentences, or we can say affirmative sentence. Next is interrogative, and then negative sentences. Okay, now we know that this verb will change the tense, the time. So we have to use different types of verb forms in these sentences, right? But हमें कैसे पता चले कि कौन सी verb form यूज करनी है? यही हम सीखेंगे टेंसेस में. टेंसेस हमें बताएंगे कि हमें कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करनी है, जिससे हमें जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, उस सेंटेंस से हमें पता चल पाएगा कि किस टाइम की बात हो रही है. अब मैं आपको बोलती हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, है ना? तो इसमें काम कौन सा हो रहा है ना? इसमें अब काम क्या हो रहा है? आई एम टीचिंग. अब मैंने वर्ब फॉर्म कौन सी यूज की? V1 ING. तो कैसे पता चला कि ING यूज करी है मैंने? तो फिर कैसे होगा पता कि यहाँ ING ही यूज करनी है? ये हमें टेंसेस बताएंगे, है ना? और कैसे क्या सीखते हैं हम टेंसेस में? और टेंसेस में हम सीखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करेंगे हम, है ना? लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ टेंसेस. यस, we have basically 3 types of tenses. First is past, second is present, and third is future. मुझे पता है, बहुत अच्छे से आते हैं आपको, है ना? Now let's start the subtypes. First is indefinite, or we can say simple. I am talking about all the types, all the 3 types and further types. Okay, subtypes. Next is B, continuous.
and then third part is perfect, and then D part, last but not the least, it is perfect continuous. ओके तो पहले सबके एक बार मीनिंग देख लेते हैं क्या है, ताकि हमें इजी हो सके फर्दर यूजेस में, है ना। तो if we are talking about past tense, it means we are going to talk about the time that has gone, right? If we are going to talk about present tense, it means we are going to talk about the time that is we have now, है ना, जो अब है हमारे पास टाइम, और फ्यूचर दैट इज येट टू कम, जिसको अभी आना है टाइम को, है ना, उस टाइम के बारे में बात करनी हो, देन वी विल यूज फ्यूचर टेंस। तो पास्ट दैट हैज गॉन, प्रेजेंट दैट इज कॉन्टिन्यू और स्टिल हैव, एंड फ्यूचर येट टू कम, अभी जिसे आना है टाइम को, है ना। तो नाउ इनडेफिनेट और सिंपल, इसमें हम क्या बात करते हैं, जर्नल बात करते हैं। इसमें हम लोग जर्नल जो भी बातें होती है हमारी, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल पास्ट टेंस, देन वी विल टॉक अबाउट द टाइम दैट हैज गॉन, जो अभी अभी जो टाइम दैट हैज गॉन, जो जा चुका है टाइम, उसके बारे में बात करनी है, देन वी विल यूज सिंपल पास्ट। और अगर हमें सिंपल प्रेजेंट की बात करनी हो तो हम लोग यूज करते हैं इररेगुलर, हमारी कोई एक्टिविटीज हैं या हैबिट्स है, रेगुलर हैबिट्स हैं हमारी, है ना, हैबिट्स को बताना हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताना हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसे सब मानते हो, पूरी दुनिया मानती हो, तो ऐसी बात को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट और वी कैन से इनडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट यूज करते हैं। और फ्यूचर कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर यूज करते हैं जो टाइम अभी आना हो, तो सिंपल फ्यूचर, जो टाइम अभी आना हो, जिसके बारे में आने वाले टाइम के लिए बात करनी हो, तो हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर, राइट। अब ये तीनों क्लियर हुए, पास्ट जो हमें बात बतानी हो जो जा चुका है, और प्रेजेंट जिसको जो अभी चल रहा है या हमेशा जो काम हम करते हैं। ऐसा कोई काम बताओ, एग्जाम्पल दो मुझे जो आप डेली करते हो। हाँ, बहुत सारे काम है डेली करने वाले ना। वी ब्रश आवर टीथ, राइट, वी ईट फूड, वी ड्रिंक वाटर, वी चिट चैट विद अदर्स, है ना, विद फ्रेंड्स, और मैनी मोर। आई टीच यू, है ना, मैं भी तो डेली टीच करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको टीच करती हूँ। और फ्यूचर जो टाइम अभी आना हो उसके लिए हमें बात करनी हो, जैसे आई विल टीच यू टुमारो, है ना, मैं तो पढ़ाऊंगी तुम्हें, तो आने वाले टाइम की मुझे बात करनी हो, सिंपल बात करनी हो, देन वी विल यूज सिंपल फ्यूचर। ठीक है, क्लियर। अभी बात करते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या है, अगर हमें देखो पास्ट कंटिन्यूस की बात करनी हो, तो जो पास्ट में कोई काम चल रहा हो, उस टाइम पे हम कोई बात बताते हैं पास्ट की, और उस टाइम पे वो काम हो रहा हो पास्ट टाइम पे, तो हम यूज करते हैं उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मुझे कहना हो कि मैं तो कल मार्केट जा रही थी, है ना, तुमने मुझे कब देखा, मैं तो मार्केट जा रही थी। पुरानी बात को हम बात बता रहे थे ना कि उस टाइम पे तो मैं ये कर रही थी, मैं तो ऐसा कर रहा था। तो ऐसी बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमें यूज करना हो, यानी कि अब इस टाइम पे बोलते बोलते हम जो काम कर रहे हो, कोई हमारे बोलते बोलते कोई और कोई काम कर रहा हो, जैसे मैं तो पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो अब इस टाइम मेरे बोलते बोलते मैं क्या काम कर रही हूँ, वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी को शो करता है कि अभी चल रहा है वो काम, है ना। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है, जो काम हम आगे आने वाले में हमें ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मैं ये काम कर रही होंगी, है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रही होंगी कल इस टाइम पे, तो ऐसा कुछ बताना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस अपने आप में मीनिंग क्या शो करता है, जो काम कॉन्टिन्यू हो। हम सारी बातें किसके कंसर्न में करते हैं, वर्ब, एक्शन के कंसर्न में। तो एक्शन जो हमारा अगर डेली हमारा जो काम है, डेली का काम है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट। और हमारा काम अभी चल रहा है तो हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इट मीन्स, है ना। और अगर अब बात करते हैं हम परफेक्ट, तो अगर हमारा जो हमारी वर्ब है, सारी बातें हम वर्ब को ध्यान में रख के करते हैं ना, तो यहाँ परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम जर्नल लैंग्वेज में हम बात करें तो व्हाट इज परफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट,
परफेक्ट मीन्स समथिंग इज लाइक फ्लॉलेस, है ना, कंप्लीटेड, जिसमें अभी कोई कमी नहीं हो, जो पूरा हो गया हो, जिसमें अभी लगता है कि बस कंप्लीट है, परफेक्ट है ना, तो हम यूज करते हैं उसके लिए परफेक्ट। तो सिंपल, अगर हम पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, जो पास्ट में काम पूरा हो गया हो। अब बात तो हमें सारी की सारी वर्ब के लिए करनी है ना, काम हमारा कब हुआ, कैसे हुआ, तो जो काम हमारा परफेक्ट हो गया पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। जो काम प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि अभी भी पूरा हुआ हो, प्रेजेंट में हमने पूरा किया है, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट, जो काम हम फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे, है ना, सो सिंपल। एंड नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है कि हमारा हाफ काम जो है वो तो कंप्लीट है और हाफ जो कॉन्टिन्यू है। तो अगर पास्ट में हमारा कोई काम है, जो वर्ब है हमारी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो काम हमारा अगर हाफ काम जो है परफेक्ट हो गया और हाफ हमारा अभी चल रहा हो, बात करते हुए हमारी बात, हम पहले कोई बात बता रहे कि उस टाइम पे मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो 2 घंटे से पढ़े, ऑब्वियस से थोड़ा तो पढ़ लिया, थोड़ा भी चल रहा है ना, तो कुछ काम हमारा जो है वो परफेक्ट है यानी पूरा हो गया और कुछ अभी चल रहा हो। और प्रेजेंट में भी ऐसे, आज के टाइम पे कुछ काम ऐसा हो जो पूरा हो गया और थोड़ा अभी बाकी हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में भी कोई बात बतानी हो जिसका काम कुछ कंप्लीट हो गया हो, कुछ कंटिन्यू हो, है ना, तो ऐसा फॉर एग्जाम्पल कि मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रही होंगी कल, तो है ना, तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि कुछ काम तो पढ़ा रही होंगी, तो सुबह से तो ऑब्वियस से थोड़ा तो चल पूरा हो गया होगा और थोड़ा भी चलना होगा, चल रहा होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप इन सब के मीनिंग क्लियर हुए, कब कब किस किस टाइम के लिए किस किस वर्ब फॉर्म के लिए हमें यूज करना है, ये समझ में आया, है ना। नहीं आया तो वीडियो फिर से देखो, है ना, ये तो लाइव क्लास में क्वेरीज ले लो। चलो अभी हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इनडेफिनेट और सिंपल होती, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की सिंपल फॉर्म्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी सेंटेंसेस के बारे में, है ना, तो हमने 3 टाइप्स के सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, राइट। अब उसका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एक बार ध्यान में रखना, कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज फॉर टेंसेस दैट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज ऑलवेज पीपल आर सेइंग। नो, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ध्यान से समझो, बस एक बार समझ लोगे ना, फिर लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, आई एम श्योर, मेरी गारंटी है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, और सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट को हम लोग इनडेफिनेट भी कहते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मेशन फॉर रेड, मैं सबकी फॉर्मेशंस बताऊंगी और ध्यान रखना है सेम वही फॉर्मेशंस हैं जो हमने सेंटेंसेस के लिए की थी। सेंटेंस कैसे बनाना है वही मैं इन टेंसेस के अकॉर्डिंग अब आपको सेंटेंस बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हम कहाँ यूज करते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू, जो हम ऐसे काम को हमें बताना हो जो या तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जिसे सारी दुनिया मानती हो कि वो काम होता ही होता है ना, या फिर हमें जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कोई काम करते हैं, या फिर हम जिसको करने की हमें हैबिट हो चुकी हो कि हम इंटेंशनली और इनइंटेंशनली हम लोग वो काम कर लेते हैं बस, है ना। तो formation for this is subject plus verb V1 S or ES plus object. Okay, तो let's take an example for it. अब ऐसा कोई काम बताओ जो आप डेली करते हो। He takes coffee, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने टेक्स क्यों लिया, अब कैसे पता चले कि हमें एस लेना है वर्ब के साथ और ईएस लेना है। V1 तो समझ में आया कि V1 तो लेना ही लेना है, लेकिन कहाँ एस लेना है और कहाँ ईएस लेना है। सो फॉर दैट वी हैव अ रूल। ये एस और ईएस का ना फंडा ना मेरे नाम से याद कर लो, एस फॉर शोभा है ना, तो एस का ही रूल सबसे डिफरेंट रहेगा पूरे टेंसेस में, वो ध्यान रखना। तो एस और ईएस जो है हम लोग यूज करते हैं इफ आवर सब्जेक्ट इज, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन में हो और प्लस है ना सिंगुलर भी हो। ये दोनों ही रूल आपको ध्यान में रखने हैं, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। अब बात आती है कि थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, प्रोनाउन कराए थे है ना, तो उसके मैंने पर्सन्स भी कराए थे। कौन कौन से पर्सन्स कराए थे, फर्स्ट पर्सन कराया था, सेकंड पर्सन कराया था और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में कराया था ना थर्ड पर्सन्स। अब फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जो हम अपने लिए वर्ड यूज करते हैं, कौन कौन से है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, राइट। और सेकंड पर्सन में कौन से होते हैं, जो हम सुनने वाले के लिए यूज करते हैं, द पर्सन हु इज लिसनर्स के लिए, ये कौन होते हैं, लिसनर्स। और ये कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर्स, यानी कि स्पीकर जो है वो अपने लिए जो वर्ड यूज करता है दैट इज नोन एज फर्स्ट पर्सन, और लिसनर्स जो अपने लिए, सुनने वाला जो अपने लिए वर्ड यूज कर, स्पीकर जो है सुनने वाले के लिए जो वर्ड यूज करता है। मैं हूं स्पीकर, तो आप लोग सुन रहे हो, तो मैं आपके लिए क्या क्या वर्ड यूज करूंगी, यू, योर, योर्स, है ना। तो ये हो गए हमारे सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन टू हुम वी टॉक अबाउट, जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें आते हैं हमारे ही, शी। अब मैं और आप, हम दोनों बात कर रहे हैं, आई एम द स्पीकर एंड यू आर द लिसनर। हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्या क्या वर्ड यूज करूंगी, जो जिनके बारे में हम बात करेंगे, ही, शी, इट, लाइक, है ना, ही, शी, इट, दे, देम, दीज, दोज, दैट, हिज, हर, हिम, है ना। तो ये हो गया हमारे थर्ड पर्सन। अब हमने बात करी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है अगर थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर भी हो तो हम एस और एस का यूज करेंगे। अब थर्ड पर्सन तो ये हो गए, इसमें सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, दे भी प्लूरल है, देम, दीज, ये सब प्लूरल है, दैट सिंगुलर हो गया, हिज, हर, इनको हम ले सकते हैं सिंगुलर में। तो फिर यहां हमारे हुए, यहां इट हो गया। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो हम सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस और एस लेंगे। अब चेक कर लेते हैं मैंने सेंटेंस सही लिखा है या नहीं, पता नहीं मैं भी गलत कर गई हूं कहीं। ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, राइट। अब काम, टेक्स, लेना हुआ काम। अब सब्जेक्ट जो है, काम को करने वाला जो है हमारा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, तो हम वर्ब के साथ एस और एस लेते हैं, राइट। तो अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, थर्ड पर्सन है, किसी और के लिए वर्ड यूज करेंगे, मैं अपने लिए नहीं कर सकती, सुनने वाले के लिए नहीं कर सकती, किसी और के लिए कर सकती हूँ ना। तो थर्ड पर्सन तो है फॉर श्योर, सिंगुलर भी है, हाँ सिंगुलर भी है, ही सिंगुलर ही होता है ना। तो फिर मैं यहाँ वर्ब के साथ क्या लूंगी, एस और ईएस। अब यहाँ पे ई ऑलरेडी था तो ऐसा आ गया, ठीक है। अब नाउन के सिंगुलर प्लूरल किए होंगे तो आपको पता होगा ये कि कहाँ ऐसा आता है, कहाँ ईएस आता है। और फिर कॉफी, इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है वो डेली कॉफी लेता है, क्लियर है। गॉट इट, हाउ टू यूज सिंपल, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेयर टू यूज, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ, हैबिट्स के साथ, और हैबिट्स के लिए और कहाँ यूज करते हैं, जो कोई काम हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं या ज्यादातर हम करते हैं, है ना। तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट। और इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो फॉर्मेशन बताई थी क्या था,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मेशन बताई थी। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। अब यहाँ कैसे, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ हमने कोई नहीं ली थी, तो क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डू और डज। ओके, तो डू और डज वही सेम रूल, एस और ईएस वाला, जिसके साथ एस और ईएस है उसके साथ यही सेम रूल लगेगा। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं डज, अदरवाइज डू, है ना। तो ही, अब ही हमारा थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो क्या यूज करेंगे, डू और डज, डज। फिर नॉट, देन V1, देन टेक। फिर हम एस और ईएस दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कॉफी। क्लियर, समझ में आया, गॉट इट, वेरी नाइस। और जल्दी से अब इंटरोगेटिव बना दो। हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, डज ही टेक कॉफी, और WH वर्ड से वाई डज ही टेक कॉफी। गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट सिंपल पास्ट, जो काम पहले हो गया हो बस उसके बारे में बताना है, सिंपल पास्ट यूज करना है। तो यहाँ हम लोग क्या ले रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब V1 एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लेना है, बस ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ अब हमारा सब्जेक्ट, मैंने इसी सेंटेंस को मुझे बताना कि मैंने पहले कॉफी पी, उस पर्सन ने कॉफी पी ली, बात खत्म, काम हो गया, है ना। पास्ट में कभी हमें नहीं पता कब हुआ, लेकिन हमें पता है कि हो गया कभी पहले। तो यहाँ हम लेंगे ही, फिर V2 लेंगे, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टुक कॉफी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव यहाँ हमने नेगेटिव के लिए क्या लिया था, डू और डज लिया था, और यहाँ नेगेटिव के लिए क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। तो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, यहां पहले V2 थी, यहां नेगेटिव के लिए फिर V1 लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ही डिड नॉट और डिन भी, शॉर्ट फॉर्म भी हम ले सकते हैं, टेक कॉफी। क्लियर, और फिर इंटरोगेटिव बनाना हो तो डिड ही टेक कॉफी, ओके। और why did he और where did he take coffee, कोई भी WH वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। अभी जल्दी से सिंपल फ्यूचर जो आगे होना है काम, हमें नहीं पता कब होना है, लेकिन हमें ये पता है कि फ्यूचर में कभी होना है, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मेशन लेंगे, हियर वी हैव टेकन V1 as or yes, here we have taken V2, now we will take subject plus will or shall plus V1 plus object। अब बात आती है, where do we use will, where do we use shall। shall हम यूज करते हैं I और V के साथ, अगर हम कोई जर्नल बात कहते हैं। अब हम जनरली बात सुनते हैं, लोग कहते हैं I will do it, मैं इसे करूंगा, तो क्या वो सही है, नो, ग्रामेटिकली इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। लेकिन हाँ, सही हो भी सकता है अगर हम कोई प्रॉमिस करते हैं, तो फिर हम यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ विल, है ना। वैसे रूल क्या है, हमें आई और वी के साथ क्या यूज करना है, शैल। लेकिन अगर हम, इफ वी आर कमिटिंग और वी आर कीपिंग एनी प्रॉमिस, देन वी कैन यूज will with I or V. For example, I am saying here, I shall take coffee, कि मैं कॉफी लूंगी, है ना। और अगर मैं प्रॉमिस करूं मैं पक्का ही लूंगी कॉफी, है ना, तो I will take coffee tomorrow। ठीक है, तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना। यहां हम लोग कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, yesterday, ago, last।
तो ऐसे वर्ड्स हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए कैसे करते हैं? टुमारो, नेक्स्ट मॉर्निंग, फॉलोइंग डे, है ना, तो इनके लिए हम यूज करते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल टेंसेस। हाँ, इसका नेगेटिव हमें करना हो तो इट वॉन्ट, विल नॉट की, यहां हम लोग ही ले लेते हैं, ही वॉन्ट टेक, विल नॉट की कंट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म क्या है? वॉन्ट। ही वॉन्ट टेक कॉफी, वो कॉफी नहीं लेगा, है ना। विल ही टेक कॉफी, क्या वो कॉफी लेगा? और हम लोग प्यार से अगर किसी से पूछना हो तो हम क्या पूछते हैं? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, है ना। और वाई और वेयर विल ही टेक कॉफी, कहां लेगा वो कॉफी? आई होप इट इज क्लियर टू यू दी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। एक बार जल्दी से रिकैप ले लो। सिंपल पास्ट जहां हम यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट और मोस्ट ऑफ द टाइम की बात करते हैं, जो हमारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम हो, हम करते हो, उनके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एसोरियस और ऑब्जेक्ट। यहाँ सिंपल पास्ट में हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, यहाँ लेते हैं हम लोग V1, यहाँ हम यूज करते हैं V2 और यहाँ अगेन V1 विद विल और शैल। ठीक है, क्लियर है? एक बार क्लियरली बता दूं सबको, एक बार रिवाइज। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ओके, तो यहां हमने क्या क्या रूल किया था? यहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 एसोरियस प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड हियर वी टेक सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब रूल था हमारा एसोरियस के लिए। वेयर डू वी यूज एसोरियस? विथ थर्ड पर्सन singular, right? If our subject is third person singular, then we take asoreus with V1, otherwise not. Here there is no rule. And for will or shall? For shall, where do we use shall? With I or we. For rest of the person, we use will. Okay, our second rule. It is used for universal truths. If our work we do most of the time, or usually we do any work, or habits, for habits we use present, simple present. And past, the work that has if we want to talk about past time, कोई भी पास्ट टाइम में कोई काम हुआ उसे बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट। और फ्यूचर फॉर कमिंग टाइम, आने वाले टाइम में कोई भी कभी भी कोई काम करना हो तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, और हमने यहां यूज किया था एक रूल, वी यूज एगो, येस्टरडे, लास्ट, सच वर्ड्स, है ना। एंड हियर वी यूज tomorrow, next day, like this. And here we use always, usually, most of the time, ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जो टाइम पीरियड को शो करते हैं इनके। क्लियर है? समझ में आ गया?